Hello, viewers, my colleagues, my friends. Welcome to another episode of Business Decoding Decode podcast. Today we have one of the most amazing person, Mr. Parag Avasthi. He is a Vastu Acharya. His website is paragavasthi.com. Why I said he is wonderful because I have tested him myself. Today I feel whatever elevation I got in life in the COVID times also is because of one and only Parag Avasthi. Parag ji, welcome to the show. Hello Manav ji. Thank you very much for coming. It's my pleasure to be on your show, on your most privileged show, prestigious show. I'm privileged to be here. Thank you. Thank you so much for the invite. So today we'll decode his business. We'll decode about Parag Avasthi. We'll ask him few questions about his journey, about what he do, about how he have done this. And it's very exciting, Parag ji, that you don't even handle the clients, you teach also Vastu to students. So please tell us about your journey and where you started and where you are at now. I'm a telecom engineer and an MBA, and I never believed in Vastu. In our family, we never believed in Vastu, astrology and all these things. And while I was studying, but I always wanted to do something for people. So something for the country, something for people, I wanted to help. And the way I stumbled upon it, it's basically a journey where I thought that Vastu might just, help us, might just help me to reach out to people to help them. And as I researched on the subject, I was being told by my elder brother who told me that I said, so he was practicing Vastu to help people. So I told him one day that, you should not do all these things. It's all nonsense. And that's what actually I told him. And then he told me that, a real educated person is the one who tries himself. And then if it works, it's fine. If it doesn't work, then he will say such a statement. So I said, okay, fair enough. I'm an engineer science student. So I will research the subject. I will, I will do a course. I will understand if it fits, it's fine. Otherwise, I will still not believe it because I really don't believe it. And so I did the course while I was working in a very esteemed company. And my boss was good enough to give me 3 months paid leave because I was one of the best engineers and manager at that time. And in those 3 months, I researched, I learned, and I understood that this science is really very good. It was 2012. And it's been like 11 years now. And I understood it really works. I did a lot of research on my own. After that, I left my job. So after that, I left my job, and it's been doing really, really good because I understood that everything relates with Vastu. Like even just your placement of visiting cards, or a flower pot, or your specs, your charging of the phone, everything you can manage the way you want your life to be managed with simple rules of Vastu. Wonderful, great, nice to know that. So हमें आपसे पूछना है सर, आपने क्या आपको ROI मिलता है? आपको कभी कभी ये नहीं लगता कि अगर मैं इंजीनियर ही होता एक बहुत बड़ी कंपनी में, या फिर मेरी खुद की इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग फर्म होती वीज़ा वी वास्तु, सो आपका क्या लगता है कि वो आपको ज़्यादा बेटर ROI देता है या ये ज़्यादा बेटर ROI दे रहा है? I crossed my salary figure. So I was earning already in lakhs while I quit in 2012. And I started making that much money in just probably 2 years of time. So as you know, I'm one of the highest paid consultants. So I'm very happy because now I not only am serving in India, but I'm serving in almost 12 to 13 countries now. Wow. We've just backed the 13th country now. Amazing. तो आप एक बात बताओ, हमें तो अभी तक यही पता था, मुझे यही फील होता है कि इंडिया में ही वास्तु की इतनी इम्पोर्टेंस होगी. आप इतनी कंट्रीज़ बता रहे हो, लोग इतनी कंट्रीज़ में वास्तु को मानते हैं सर? मुझे एक्चुअली तब पता चला जब मैं दुबई गया था, और दुबई में हमें मौका मिला एक स्टूडियो में हमें अपना सेशन रखने का मौका मिला, और वहाँ पे 16 कंट्री के लोग आए थे. और हमने उस वक्त उस 16 कंट्री के लोगों को जब हमने उनसे बात की और जब वो हमने सेशन लिया, तो हमें पता चला कि ये सारों को वही प्रॉब्लम है जो मैं बता रहा हूँ. मतलब जिनके डायरेक्शन में जहाँ पर टॉयलेट है वहाँ पे वो प्रॉब्लम है, जहाँ पे किचन है वहाँ प्रॉब्लम है, जहाँ पे डस्टबिन है. तो ये एक साथ हमने उस दिन 2 घंटे के अंदर हमने पूरा 16 कंट्री के लोगों को हमने एनालाइज़ किया, और तब मुझे पता चला कि ये वर्ल्ड वाइड काम कर रहा है. ये सिस्टम ऑफ एनर्जीज़ है और ना कि इसको किसी रिलीजन से या किसी को स्पिरिचुअलिटी से लेना देना है. इट्स द वे द सिस्टम वर्क्स. जैसे आपकी किडनी काम कर रही है, वैसे यहाँ पे साउथ ईस्ट काम कर रहा है. तो इट इज़ सेम एवरीवेयर सेम.
मैंने सुना है सर आप काफ़ी सेलिब्रिटीज़, काफ़ी एमपीज़, एमएलएज, काफ़ी पॉलिटिकल फिगर्स को भी वास्तु कंसल्ट कर चुके हो, यानी उनके घरों को, उनके ऑफिसेज के कितने कितने तो ऐसे बिल्डर्स हैं जो हर प्रोजेक्ट से पहले आप ही के पास आते हैं कि सर इसको प्लीज़ वास्तु करके दीजिए जिससे अच्छे से सेल हो या अच्छे से ग्रो करे। वी आर बीइंग ब्लेस्ड एक्चुअली मानव जी, क्योंकि लोगों को अभी समझ में आ गया है कि ये काम करता है, और जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उन्हें पता है कि अब ऐसा हो गया है कि कुछ भी हो, रात को 11 बजे भी हो, कुछ अर्जेंट है, कुछ प्रॉब्लम हो गया है, तो मुझे फ़ोन आ जाता है कि सर कुछ कर सकते हैं क्या। और मैं सिर्फ एक फ़ोन कॉल दूर हूँ जब मुझे बताना होता है कि घर में ये चीज़ यहाँ पड़ी हुई उसको हटा दो। तो भी जैसे ही जो मेरे बिल्डर क्लाइंट्स बने, जो क्लाइंट्स जिनकी कुछ विजन थी, जो विजनरी क्लाइंट्स होते हैं उनके साथ काम करने में मज़ा आता है। तो मैं ब्लेस्ड हूँ कि कुछ पॉलिटिशियंस हो गए, कुछ बिल्डर्स हो गए, कुछ सेलेब्स हो गए जो बिलीव करते हैं मेरे काम पर। कुछ लोग बोलते हैं भैया पराग एक जादूगर है, क्योंकि जब वो आपसे फ़ोन करके पूछते हैं कि पराग जी मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कुछ, मैंने सुना है और मेरी वाइफ ने भी मुझे बोला है कि मैंने पराग जी को फ़ोन किया और पराग जी बोलते हैं आपके लेफ़्ट साइड का जो बेडरूम है उसमें राइट साइड पे कोई रेड कलर की चीज़ पड़ी है, और उसने देखा वहाँ पे आयरन बोर्ड और प्रेस पड़ा हुआ था। तो ये आप कैसे करते हो? यू हैव सम सिद्धि और कुछ आपके अंदर पावर्स हैं, या ये सब कैसे आता है? ये पूरा साइंस ही कैलकुलेशंस है। जैसे मैं कहता हूँ कि वास्तु अकेले काम नहीं करता है, इट नीड्स एस्ट्रोलॉजी। और जो वास्तु के पंच तत्व है उनके साथ जब आप कुंडली को जोड़ दो, जब प्लैनेट्स को मर्ज कर दो, तो जब मैंने आपसे बात करी थी तो मुझे कुछ मंगल का प्रेजेंस लगा था, मार्स। तो मंगल इज़ अ रेड थिंग और सब्सटेंस जो हीट करता है, गर्म करता है। और किस दिशा की प्रॉब्लम जब आपने शेयर की, तो हर दिशा की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है। तो आपने उस दिशा की प्रॉब्लम शेयर की और वहाँ पे मुझे कुछ लगा कि मंगल का कोई प्रेजेंस होना चाहिए, जिस वजह से मैंने, क्योंकि आपके घर का नक्शा था मेरे पास, तो मैंने कहा कि लेफ़्ट में जाके राइट में चेक करिए, या और वो मिला था। सो दैट इज़ हाउ इट इज़। अच्छा सर, मुझे बताइए, इतने सारे व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, मैंने पास में इतनी ऑटोमोबाइल डीलरशिप्स दी हुई हैं, इतने सारे बिजनेसेस में आपको पता है कि हम डील करते हैं, तो इन व्यूअर्स को अगर आपकी मदद चाहिए और उनको अपने यहाँ का वास्तु कराना है, या उनको चाहिए कि उनके वास्तु में अभी उनके प्रेजेंट में क्या चल रहा है, फ्यूचर में क्या चलेगा, तो हाउ कंफर्टेबल यू आर गेट इन टच विद द क्लाइंट्स, एंड क्या प्रोसीजर है और आप क्या चार्जेस करते हो उनको अंदाजन? अगर आप नहीं भी बताना चाहते तो एक आइडिया दे दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लाइंट को हम चूज़ एंड पिक करते हैं। हम सब क्लाइंट का काम नहीं करते हैं, क्योंकि उस क्लाइंट का काम करने में मज़ा है जिसका कोई विजन है, कोई अप्रोच है, कुछ उसे करना है अगले 5 साल में, 10 साल में, कोई विजन लेके चल रहा है। क्योंकि तब जाके मुझे लगता है कि मैंने जस्टिस किया उस काम को। और हम पूरा नाप के काम करते हैं, यानी कि अगर आपने कहा कि हमें 5 साल में इस टर्नओवर पे पहुंचना है, एक 500 करोड़ कंपनी को बनना है, वहाँ पे अभी 50 CR पे है, तो पॉसिबिलिटी क्या है, कैसा कर सकते हैं हम, उस लेवल पे हम काम करते हैं। सो करना है तो हम तो काफ़ी कंट्रीज़ में काम कर ही रहे, तो विज़िट करते हैं, हम विज़िट करके समझते हैं कि क्या है, और पिक्चर्स लेके, जो उनकी बर्थ डिटेल्स है वो लेके, उसके बाद उनको क्या चाहिए वो पूरा, पूरा द होल, आई फील दैट वास्तु साइंस या एनी कंसल्टेंट का जो जॉब होता है वो पूरा लिस्टिंग पे होता है। अगर आप सही से सुनते हो तो आप उसको सही से क्वेश्चन पूछ के डिकोड कर सकते हैं, जैसे आप कर रहे हो डिकोड। तो डिकोडिंग जब होती है तो आपको पता चलता है अच्छा एग्जैक्टली इनको ये चाहिए और यहाँ पे गाड़ी अटकी है, उसी चीज़ को आप मूव करो, क्योंकि बाकी सारा तो आप कर सकते हो। आप एक जगह फंसे हो, बस उस जगह में अगर कोई मदद कर दे आपकी, कभी कभी हेल्प करने में हम थोड़ा सा शर्मा जाते हैं, लेकिन वहाँ पे हेल्प हो गई तो फिर तो आप सभी कर सकते हो। तो मेरा काम है वहाँ से आपको बाहर निकालना, ताकि आपको जो चाहिए लाइफ में वो आपको मिले। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप इमेजिन करिए कि हमारे एक बिजनेसमैन हैं जिनके पास 5 डीलरशिप्स हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, और वो एक स्कूल चलाते हैं। अभी उनको सब अच्छा चल रहा है उनकी लाइफ में, बट लाइक यू सेड ही वांट्स टू टेक हिज कंपनी टू 500 करोड़। राइट नाउ ही इज एट 200 करोड़। सो क्या प्रोसीजर होगा, वो कैसे आपसे टच में आएगा, कैसे आप उसको क्या क्या स्टेप्स लोगे टू रीच टू अ लेवल वेयर यू आर कंसल्टिंग हिम एंड गिविंग हिम अ सॉल्यूशन एंड ही इज अचीविंग इट व्हाट ही वांट्स? ऐसा केस हमारे पास आया है, अहमदाबाद में आया था हमारे पास, और उसमें हमने क्या किया था कि जब हम उन क्लाइंट से बात करते हैं तो सबसे पहले जब हम विज़िट करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उनका घर। तो उस घर का नक्शा बनवा लिया, और कौन सी वो यूनिट है। जैसे उस केस में हमने देखा था कि उनकी कॉलेज फंक्शन नहीं कर रही थी, उनके एडमिशन्स करेक्टली नहीं हो रहे थे। वो अगर प्रॉपरली हो जाता है तो बाकी सारा पिकअप हम कर देंगे, कोई बात नहीं है। तो हमने मेन घर किया, उनके बर्थ चार्ट पे काम किया, क्योंकि कोई भी प्लैनेट को जब काम करना होता है, जब हम कहते हैं कि शनि खराब है या गुरु की दशा ठीक नहीं है, जो भी अलग अलग प्लैनेट की हर एक कंसल्टेंट के जब कहते हैं,
तो हम वो प्लानट तब तक आपके घर में तब तक आपकी लाइफ में नहीं आ सकते जब तक आप घर में ना आ जाए। तो हम घर में उन प्लानट को मैनेज करते हैं सो दैट वो प्लानट का फंक्शन आपके लिए पॉजिटिव हो जाए। और उसके बाद तो सबसे पहले घर, नक्शा लेकर, कुंडली लेकर फिर सजेशंस देते हैं, और सजेशंस में कोई तोड़फोड़ नहीं करते, ना हमको यंत्र बेचते हैं। मैंने अभी पहले 1 साल में काफ़ी यंत्र बेचे मैंने, लेकिन अभी पिछले 10 साल से मैंने ना कोई यंत्र बेचा है, ना मैंने कोई तोड़फोड़ करी है। ये सिंपल चेंजेस होते हैं, जैसे कर्टन चेंज कर दिया, डस्टबिन शिफ्ट कर दिया, डुएबल होते हैं। कभी कभी एक दिन में सारा हो जाता है और रिजल्ट आप नेक्स्ट दिन से या सेम डे से भी ले सकते हो। मैंने काफ़ी जगह आपके बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए देखे हैं, और ये भी मुझे पता है कि यू आर वन ऑफ द मोस्ट हाईली पेड वास्तु कंसल्टेंट्स इन इंडिया। तो आप इस मुकाम तक कैसे पहुंचे, और आपका सबसे बड़ा फेलियर ड्यूरिंग द जर्नी क्या था? बिकॉज सक्सेस के बारे में तो सबको पता ही है कि पराग अवस्थी क्या है, बट फेलियर्स ड्यूरिंग द जर्नी क्या क्या थे? फेलियर्स आर योर लर्निंग्स। और मैंने, क्योंकि हर केस नया होता है, जैसे कभी कोई कहता है कि हमें बच्चा चाहिए, कोई कहता है कि मैं शादी करवानी है, बेटी की शादी करवानी है, नहीं हो रही है। और हमने बहुत सारे सक्सेसफुल केसेस किए वैसे, और लेकिन जहाँ पर भी मुझे लगा कि ये अभी भी नहीं हुआ है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनको मेरी सर्विस और एक्सटेंड कर दूँ, क्योंकि वो एक मौका होता है कि आपको और सब्जेक्ट में डीप जाने का मौका मिलता है। पर उसमें चार्ज ना करते हुए कोशिश करता हूँ कि चार्ज ना करूँ, और उसी में और डिटेल में करके फाइनली यूजुअली रिजल्ट्स मिल जाते हैं, कभी थोड़ा जल्दी कभी थोड़ा लेट। पर जो डिफ़िकल्ट है, जो आप जैसे फेलियर के स्टडीज़ में मैं कहूँगा कि हाँ, अभी भी एक लड़की है जिनकी शादी अभी तक मैं नहीं करा पाया, और एक बिजनेसमैन है जिनको जिस टर्नओवर पे जाना है, अभी वहाँ हम उतने साल में नहीं पहुँच पाए अभी तक, अभी भी वो जर्नी चली रही है। आई वुड एडमिट दैट, या इट्स नेवर 100%। एक मुझे आपसे ज़रूर चीज़ पूछनी है कि आपका सबसे ज़्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट आपकी करियर में क्या था? एम्बैरेसिंग मोमेंट एक्चुअली यूजुअली आउट ऑफ इंडिया ही होते हैं, क्योंकि वहाँ जब आप किसी गोरे से बात करते हो तो पता चलता है कि, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं हर चीज़ को वास्तु से कनेक्ट कर सकता हूँ, हर चीज़ को, आपके चश्मे के कलर से लेके आपकी टाई तक, हर बात में वास्तु और एस्ट्रोलॉजी कंबाइन कर सकता हूँ। तो मैं कभी कभी बात करते करते चला जाता हूँ उस मोड में, और पता चलता है कि उसको कुछ पता ही नहीं है। एंड देन वो लाइक क्या आपको अच्छा ओके, तो लगता है कि नहीं, यहाँ पे ये बात नहीं कर सकते, मतलब धीरे सब्जेक्ट समझाना पड़ेगा पहले। तो लॉट ऑफ एम्बैरेसिंग मोमेंट्स दैट वे। सो सर, जब आप हमसे बात कर रहे हैं तो हमारे बहुत सारे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, और कुछ जो इस हम पूरे सेशन में हम मिस कर दिए, कोई ऐसी चीज़ है जो पॉइंट को आप अपनी तरफ से टच करना चाहते हैं, उन तक नॉलेज पहुंचाना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूँगा कि वास्तु, क्योंकि मैं खुद इंजीनियर हूँ और MBA हूँ, और मैंने देखा है कि इसको मैंने हर मोमेंट पे देखा है कि ये काम करता है। यहाँ तक कि हमने एक कंपनी की 20 करोड़ की डील थी, जो वो हमारे क्लाइंट्स ही थे एक्चुअली, और उनको चाहिए था कि एक बड़ी कंपनी उनको डील दे दे। वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि उनके डील्स हमेशा 10-12 करोड़ के होते थे, और ये 20 करोड़ की डील आ गई थी। तो तभी हमने मतलब इस हद तक ये काम करता है कि हमने उनको बोला कि मीटिंग में कौन से शब्द यूज़ करने चाहिए, कि आप एक्शन वर्ड यूज़ करना, आप ये वर्ड, वो वर्ड जब उन्होंने यूज़ किए, और किस तरह के लोग आएंगे मीटिंग में, और मीटिंग कैसे चलेगी, वो हमने पूरा उस मीटिंग में मैं खुद, वो मुझे लेकर गए थे। और जो मीटिंग सक्सेसफुल हुई तो मुझे लगा कि एवरी मोमेंट हम हर चीज़ को डिकोड कर सकते हैं, और उनको ऑर्डर मिला, उनको सक्सेसफुल है। सो मैं व्यूवर्स को ये कहना चाहूँगा कि आप ट्राई करते रहें, लेकिन हर चीज़ हम कर सकते हैं। लेकिन जहाँ आपको लगे कि ये नहीं हो सकता है, प्लीज़ टेक हेल्प ऑफ समवन, और वहाँ से बाहर निकलिए, क्योंकि आपका पर्पस ऑफ लाइफ बहुत आगे है, आपको बहुत कुछ करना है, तो वहाँ डिले मत करिए। एन्जॉय योर मोमेंट्स, हैव अ हैप्पी लाइफ। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस। आपको पराग जी से कुछ भी पूछना है, आप नीचे कमेंट्स में हमें कमेंट छोड़िए, हम आपको डायरेक्टली उनसे टच में ले आएंगे। और सब्सक्रिप्शन का बटन दबाइए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आपको हर डीकोड पॉडकास्ट प्रॉपर डिकोडेड वे में मिले, और आप सुने कि हम क्या क्या कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मनोज जी। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर द कमिंग। अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। Hello everyone. Hello everyone and welcome to Business Decoding Decode podcast. Today we have an amazing person, Mr. Parag Avasthi, who is a wonderful guy, a wonderful person, and an amazing Vastu Guru, who is not working only in India but entire international markets. Today he have clients of more than 13 countries. Welcome to the show.
Parag ji. Thank you, Manoj ji, for the invite.